Hello students, now we will discuss with the students of 12th class. Today our topic is the principle of United Nations. As yesterday we have discussed regarding the agencies of United Nations, various agencies which are established by the United Nations, which are the aim of those agencies is to bring peace all over the world in different fields. Now today we will discuss what are the basic principles of United Nations. Basic principles of United Nations. जैसा आप ये समझते हो कि जब भी किसी किस्म की ऑर्गेनाइजेशन, कोई एनजीओ, कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसका वजूद आए, जिसको वजूद में लाया जाए, वो हर चीज़ के कुछ न कुछ पहलू होते हैं. मीन्स कहीं न कहीं किसी का कुछ एम होता है, कोई मकासद होता है, तो फिर उनके कुछ असूल्स भी होते हैं. मीन्स देयर आर सर्टन प्रिंसिपल्स विच आर फिक्स्ड बिफोर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनी एजेंसी, एनी एनजीओ. फर्स्ट सर्टन rules and principles are set on the basis of those principles that agency will work, will perform his duties accordingly. So as far as the United Nations is concerned, originally it was started by 51 members, and nowadays there are 193 country members. Though this United Nations had different organs, means there are different organs. We are not going to discuss those organs today, but how this United Nations is framed, what are the principles on the basis of which this United Nations work? What are the basic principles? We will discuss them. First of all, the first principle of the United Nations is the sovereign equality. Sovereign equality. So sovereign equality, what do we mean by sovereign equality? Sovereign means all the countries, whether the countries are big, the countries are small. If we can talk of the country like America or the country like Bhutan, means कंट्री चाहे अमेरिका हो या छोटा मुल्क जो है वो भूटान है, द ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सॉवरेन इक्वलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स. मींस जो भी कंट्री मेंबर है, जो भी यूनाइटेड नेशन का मेंबर है, उसको सॉवरेन इक्वलिटी मींस ऑल द कंट्रीज आर ट्रीटेड इक्वली. Means whether the country is developing or the country is under development or the country is developing. Means we cannot, this does not matter over here that the country is well developed or it is a developing country or it is a under development. But here in the United Nations, all the countries, the basic
principle of the United Nations is that the all countries are treated equally, means whether that is a big country or a small country, whether that is a rich country or a poor country, but they, as per the principles of the United Nations, they can be treated equally. उनको बराबर का हक दिया जाता है, उनको बराबर का अपना जो है बात करने का हक दिया जाता है। जिस तरह से एक रिच कंट्री जो है वो यूनाइटेड नेशन में अपना दावा पेश करेगा, अपना सबमिशंस करेगी, इन द सेम वे द पुअर कंट्री कैन आल्सो हैव ए provision, there is a provision in this that he can submit in the same way कि वो भी अगर अमीर मुमालिक है, कोई रिच कंट्री है, कोई डेवलप्ड कंट्री है, जिस तरीके से वो अपने अधिकार, वो अपने जो सबमिशन, अपनी अप्रोच उसको कर सकते हैं, इन द सेम वे एक गरीब कंट्री है, एक छोटा देश है, छोटा मुल्क है, उसका उसे भी अधिकार है कि वो भी उसे वो वैसे ही कर सकता है जिस तरह से एक बड़े मुल्क ने, बड़े जो रिच कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री है, और फिर जो यूनाइटेड नेशन है दोनों को ट्रीट करेगी इक्वली, मींस बिफोर द यूनाइटेड नेशन both the countries are equal, whether one is a rich country, other is a poor, whether one is a developed, another is underdevelopment, but the United Nations will treat both the nations equally, means वो दोनों जो है कहीं न कहीं, it means we can say the first principle of the United Nation is sovereign equality. All the countries are treated, they are equal before the United Nation. कोई मुल्क बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, इसके ऐसे असूल हैं, ऐसे प्रिंसिपल हैं कि सारी कंट्रीज जो है, सारे कंट्री मेंबर्स जो है वो यूनाइटेड नेशन के, दे आर इक्वल, उनको अधिकार है, जिस तरह से बड़ी कंट्री का है वैसे ही छोटी का है, जो उसको हक मिलेगा वो छोटी कंट्री को मिलेगा, मीन्स देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द गैप्स, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस, they will not be discriminated by these United Nations. There are basic rules, there are basic principles that all the countries are equal. There is a sovereign equality, means हर एक कंट्री का अधिकार सब बराबर है. Then next come territorial integrity. Territorial integrity. All the members of the states are supposed to fulfill the obligations imposed upon them by the Charter, and all the international disputes are to be settled through the peaceful means. टेरिटोरियल इंटेग्रिटी जहाँ तक जो है, ये जो नेक्स्ट हमारा दूसरा जो है टेरिटोरियल, जहाँ तक ज़मीनी हक़ाइक़ है, कोई भी जो है वो इनको इंटरफियर नहीं कर सकता, उसकी टेरिटोरी है, मीन्स कोई बड़ी कंट्री जो है, इनके बेसिक प्रिंसिपल ऐसे है कि किसी भी इंटेग्रिटी, किसी भी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को कोई भी किसी दूसरी कंट्री की ज़मीन पे जो है वो कोई उस पर कोई जो है अधिकार नहीं दे सकता, या हम बोलेंगे ऐसे कि यूनाइटेड नेशन किसी दूसरे पे जो है अपना हक जता नहीं सकेगा, या कोई भी कंट्री मेंबर जो है वो इसका सहारा लेके, यूनाइटेड नेशन का सहारा लेके दूसरी की ज़मीन की, दूसरी की जो बाउंड्रीज हैं, उनकी इंटरनल जो इंटेग्रिटी है, जो इंटेग्रेशन है, मीन्स यकजहती है, उस पर कोई हाथ नहीं मार सकता, उस पर कोई जो है वो उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, किसी की भी इंटरनल जो इंटेग्रिटी है। मीन्स हम जहाँ तक नेशनल इंटेग्रेशन की बात करेंगे, यूनियन की बात करेंगे,
तो जहाँ तक ज़मीनी सतह पे का सवाल है, उनकी टेरिटोरियल जो है वो सिस्टम है, उनका ज़मीन का जो वो बाउंड्रीज हैं उन पे कोई हाथ नहीं मार सकता, उनको कोई मीन्स कहीं इंटरफेयर नहीं कर सकता दूसरे की इस पे, मीन्स कोई सहारा ले। वहाँ पे बेसिक प्रिंसिपल जो हैं यूनाइटेड नेशन के कि दूसरा जो है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है एज फार एज पावर शैल अवॉइड वो जो है कोई भी इंटरप्ट वो इंटरफेयर नहीं कर सकता है, इंटरवेन नहीं कर सकता है किसी दूसरे के अफेयर्स में। दूसरे किसी की स्टेट है उस पर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है इंटरवेंशन नहीं कर सकता है। मीन्स द ऑर्गेनाइजेशंस आर एज फार एज पॉसिबल, इसकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगी यूनाइटेड नेशन की, एज फार एज पॉसिबल शैल अवॉइड इंटरवेंशन इन द डोमेस्टिक अफेयर्स ऑफ द स्टेट्स। मतलब किसी का जो घरेलू हो, उसका टेरिटोरियल सिस्टम जो भी हो, उसके साथ इंटरवेंशन नहीं करना है, कोई सहारा लेके यूनाइटेड नेशन का ऐसा यहाँ पे नहीं है कि वो किसी दूसरे को, किसी दूसरे की इंटरनल अफेयर्स को उनकी टेरिटोरियल जो है उस पर कोई हक जताए, उस पर हक रखे, ऐसा इसमें नहीं है। देन कम्स non-aggression. Third principle is non-aggression. Non-aggressions means अब जो है कि एग्रेसिव मीन्स यहाँ पे एग्रेसिव मीन्स गुस्सा किसी पे कोई नहीं कर सकता है। कोई भी कंट्री जो है, कोई भी कंट्री जो है दूसरे पे को एग्रेशन नहीं करेगा। मीन्स इसके जो भी ममालिक हैं यूनाइटेड नेशंस जितने भी हैं, इसका एक बेसिक प्रिंसिपल्स को लेके मान के चलना है। जो भी ऑब्लिगेशंस, जो भी हम पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाएंगी, जो भी हमारे वो जो है हमें काम सौंपा जाएगा, जो भी हमारी जिम्मेदारियां हमारे ऊपर सौंपी जाएगी, उसके ऊपर जो है वो इसके चार्टर के मुताबिक जो है, यूनाइटेड नेशन के चार्टर के मुताबिक जो ऑब्लिगेशंस किसी पे इम्पोज की जाएंगी, जो चार्टर यूनाइटेड नेशन का चार्टर है उसके तहत इफ सम ऑब्लिगेशंस आर इम्पोज्ड अपॉन एनी कंट्री, जो भी है जिसके मेंबर 4-5 आते हैं, वोट सिर्फ एक ही होता है यूनाइटेड नेशन में, एंड some obligations are imposed upon the nations which are the these members of the United Nations. Certain obligations are imposed upon them. Means कुछ जिम्मेदारियां दी जाती हैं और उन जिम्मेदारियों को विदाउट एग्रेशन, बगैर किसी गुस्से के, जो भी है उन ऑब्लिगेशंस, उन जिम्मेदारियों को निभाना पड़ता है। मीन्स कोई भी एग्रेशन नहीं करना है। जैसे हम किसी दो मुल्क के दरमियान जंग चल रहा है, कोई भी डिस्प्यूट है, कोई भी कन्फ्लिक्ट है, अगर दोनों जो हैं एग्रेशन में आ जाए तो वहाँ पे जो है वो जंग हो सकती है। इट मीन्स टू प्रिवेंट वार, टू ब्रिंग पीस among the countries of the United Nations, among the countries of the world, the principle of non-aggression must be followed. The non-aggression, which is a basic principle of United Nations, if if the countries like to bring peace in the world, so this all those countries, whether they are permanent member or the temporary members of the country, they must follow the basic principle of non-aggression, so that a peace is bring all over the world. The disputes are resolved. There may be no conflict if we can follow this. So ये जो non-aggression का है, हमें इसको फॉलो करना है, और ये जो है कि किसी को भी ज्यादती नहीं करनी है, बिल्कुल फॉलो करना है इसको, कि हमें एग्रेसिव नहीं बनना है,
so that we will bring a peace all over the world. फिर then comes non intervention. फिर हो गया non intervention. Non intervention. Then fourth basic principle of United Nation is that non intervention. फिर से दोबारा आ गया कि this is fourth basic principle कि कोई भी दो कंट्रीज हैं, suppose there is a dispute between them, they will resolve those disputes, they will solve those, they will overcome those problems which are cause of the conflict or cause of the this जो है वो उनमें जंग का जो है डिस्प्यूट है, जो कन्फ्लिक्ट है, उसको रिमूव करने के लिए उनको वो जो है बातचीत करनी चाहिए, म्यूचुअली करनी चाहिए। और तीसरा मुल्क कोई ताकतवर हो चाहे छोटा हो, that must not interfere, that must not interfere in that conflict, in solving that dispute. उसमें वो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बेसिक प्रिंसिपल है यूनाइटेड नेशन के कि वो बातचीत के समय पीसफुल डायलॉग जो है, देयर मस्ट be created peaceful dialogue between the two countries so that this dispute or conflict may be resolved by these two countries, and one cannot interfere whether that country is developed country and is a member of this United Nation, that must not try to make intervene, that must not interfere the dispute between the two countries. अगर वो करेंगे वो बाय पीसफुल डायलॉग के ज़रिए से अपने डिस्प्यूट को ख़त्म कर देंगे। वहाँ पे जो है एक बेसिक प्रिंसिपल है कि असूल है कि यूनाइटेड नेशन में ऐसा नहीं लिखा है कि कहीं पे किसी के दरमियान जो है वो डिस्प्यूट चल रहा है, कहीं उनके दरमियान जो है वो लड़ाई है किसी भी मसले पर, तो जाके जो दूसरा मुल्क उस पर इंटरफियर करेगा, दिस वो जो है वहाँ पे एक प्रिंसिपल है नॉट इंटरवेंशन। सो वहाँ पे कोई हक नहीं किसी दूसरी कंट्री का कि वो जाके उनका डिस्प्यूट में इंटरवेंशन करे। देन सेल्फ डिटर्मिनेशन इज द फिफ्थ जो है, दैट इज ए सेल्फ डिटर्मिनेशन। इरादा डिटरमाइंड मीन्स एवरी कंट्री, यहाँ पे किसी आदमी का नहीं कि हर ममालिक जो है कैसे वो फैसला लेता है अपनी कंट्री के रिकॉर्ड, मीन्स व्हाट इज गोइंग इन द कंट्री एंड हाउ दे व्हाट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ दैट कंट्री, मीन्स देयर मस्ट बी सेल्फ डिटर्मिनेशन। वो खुद क्या फैसला लेना चाहते हैं, what they will decide regarding their country, what are the conflicts in their country and how they will resolve those, what are the determination of the head of the country, कैसे करता है, मीन्स what is जिस तरह से कंट्री क्या है, as is the head so is the country, जिस तरीके का किसी ममालिक का किसी मुल्क का हेड जो है, हेड मीन्स रिस्पॉन्सिबल होता है, वो इज हेड ऑफ द स्टेट, चाहे वो पीएम है चाहे प्रेसिडेंट है चाहे क्या है, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दोज मैटर दिस टाइम, बट ऐसा है कि सेल्फ डिटर्मिनेशन जो भी वो फैसला करती है, कोई भी मुल्क जो है वो फैसला करता है अकॉर्डिंग विद रिगार्ड टू दिस चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन, दैट देयर मस्ट बी सेल्फ डिटर्मिनेशन। जो भी वो फैसला ले वो खुद लेना चाहिए, उसमें अपना एतमाद होना चाहिए, खुद इतमादी होनी चाहिए। कोई भी फैसला वो ले तो सेल्फ डिटर्मिनेशन उसमें होनी चाहिए, वो खुद जो है डिसाइड करना चाहिए, उसको कोई इम्पोज नहीं करेगा, कोई इंटरवेंशन नहीं करेगा, उसमें कोई एग्रेशन नहीं होना चाहिए, मीन्स वो इस तरीके से करे। इनके अलावा देयर आर सो मैनी, जैसे और है एज और भी इसको आगे और भी इसके प्रिंसिपल्स हैं, बट दीज आर 5 प्रिंसिपल्स आर द वेरी एसेंशियल। ये जो है ये तो फॉलो करने ही करने, दीज आर एज पर द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन,
but in addition to this, there are some other principles, which one have, which are the basic principles of United Nations. जैसे all the international disputes are to be settled through the peaceful means. Means whenever if there are some international issues between the two countries, among the many countries, suppose there is a water treaty which is a dispute between more than two countries, and these are the international issues. Means there are, it is common example that on water treaty means पानी के मसले में there are disputes among so many countries of the world. अब वो दो चार कंट्रीज हैं जिनके दरमियान में किसी एक पानी कोई एक दरिया है, सोर्स है, उस पर डिस्प्यूट्स है. मीन्स अकॉर्डिंग टू द चार्टर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस दैट इफ एनी कंट्री हैव सर्टेन इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, they are to be settled through peaceful means. Either how many countries are involved in that very issue, those are to be settled between those countries which are involved in the issue. So by the peaceful means, they must create the peaceful dialogue between those countries which are involved in that very conflict or dispute. So they must solve, they must dissolve their conflicts by means of peaceful dialogues. वो ऐसा करें without intervention of other country. Then comes all the member state must refrain from the use of force in any international dispute. Means कोई भी मुल्क जो है, हर मेंबर जो स्टेट है वो परहेज करे, वो ऐसा नहीं करे कि जिससे कोई मसला उभर जाए. मीन्स दे रेफ्रेन, वो परहेज करें फ्रॉम द यूज ऑफ फोर्स इन एनी इंटरनेशनल डिस्प्यूट. मीन्स सपोज इफ देयर इज ए डिस्प्यूट बिटवीन द टू कंट्रीज and one country can take दूसरे का सहारा ले लेगी, उसे दूसरे का वो जो है उसका देके रेफरेंस देके, दूसरे का रेफरेंस देके डिस्प्यूट को हल करना चाहेगी ताकि कहीं वो हमारे साथ है. मतलब सपोज हम दो कंट्रीज की बात करें, सपोज इंडिया, देयर इज डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, देयर इज डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड चाइना, एंड वन विल जो है विल गिव द रेफरेंस ऑफ द अमेरिका दैट ही इज हिज सपोर्टर. ऐसे कहीं स्पोक करके, तो मीन्स कहीं न कहीं जो है ऐसा नहीं करना. देयर इज नो प्रोविजन इन द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन फॉर द केसेस ऑफ लाइक दैट कि हम सहारा ले लें किसी का, एक कंट्री जो है वो दूसरे का सहारा ले कि वो ताकतवर कंट्री हमारे साथ है या तुम गरीब हो हम किसी. विदाउट दैट these dispute, these countries may be refrain, they must refrain from the use of force in any international issue. वो किसी भी उसमें इशू को फोर्स जो है नहीं, वो उसकी फोर्स इन एनी इंटरवेंशन वो जो है मस्ट इंटरनेशनल डिस्प्यूट में नहीं करे. देन कम्स the organization or as far as possible shall avoid intervention in any domestic affairs of the state. अगर कहीं पे किसी का अंदरूनी जो है कोई गड़बड़ है, उसमें दूसरी ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कोई भी जो है उसमें ये जो है प्रिंसिपल, तो वहाँ पे एक असूल है, वहाँ पे एक असूल है कि कोई भी किसी अंदरूनी मसले में किसी का कोई भी वो इंटरफियर नहीं करेगा. देन द मेंबर स्टेट्स आर सपोज टू असिस्ट द ऑर्गेनाइजेशन इन एनी एक्शन टेकन बाय इट इन अकॉर्डेंस विद द यूनाइटेड नेशन चार्टर. किसी भी कंट्री के खिलाफ, सपोज कोई भी कंट्री जो है, द मेंबर स्टेट्स आर सपोज टू असिस्ट द ऑर्गेनाइजेशन. कोई भी मुल्क जो है वो साथ देगा ऑर्गेनाइजेशन का. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर किसी के खिलाफ कोई एक्शन उठाती है इन अकॉर्डेंस विद द यूनाइटेड नेशन चार्टर, अगर ऑर्गेनाइजेशन जो है यूनाइटेड नेशन के चार्टर के मुताबिक कोई एक्शन किसी के खिलाफ उठाती है, तो दूसरी कंट्रीज जो है वो उसका साथ देंगी, वो इसका असिस्ट करेंगे, उसे उसका साथ देंगे. देन all the
member states must give free help to the UNO. मतलब वहाँ पे किसी पैसा नहीं लेना है, कोई भी जो कंट्री मेंबर है, जो भी यूनाइटेड नेशन का मेंबर है, he must help, he must give free help, बगैर किसी मतलब के, बगैर किसी पैसे के यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की मदद करनी है किसी भी मुल्क को, अगर वो उसका मेंबर है। इफ एनी एक्शन टेकन अकॉर्डिंग टू दी चार्टर, अगर कहीं पे भी जो है वो किसी का जो है वो क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन किसी के खिलाफ कोई एक्शन उठाती है जब, तो दूसरी कंट्री जो है वो उसकी मदद करेंगे फ्री, कोई पैसे किसी इसके बगैर जो है वो उसकी मदद करेंगे। ऑल मेंबर्स मस्ट एक्ट अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ यूएनओ, मींस जो भी है 193 members of the United Nations, they must act, वो बिल्कुल जो चार्टर हैं यूनाइटेड नेशन के, जो प्रिंसिपल्स हैं उनके अकॉर्डिंगली चलेंगे इन ऑर्डर टू क्रिएट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। अगर द मेंबर्स means the country members, the countries all over the world have to bring peace and security in the world, so they must act according to the charter of UNO। जो भी बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, अगर all the countries, जो पूरे ममालिक हैं, either they are the members of United Nation or not, but if they will follow the norms and rules means the charter of the United Nation, ultimately there will come a peace and prosperity all over the world। सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे, सारे कन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएंगे, अगर सारी कंट्रीज जो हैं, चाहे वो मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन के या नहीं हैं, if they will act according to the principles of the United Nation, they will follow the charter of the United Nations, ultimately peace will come, और जो है all the dispute will be resolved। आइदर वो चाहे उसके कोई कंट्री उसकी मदद करे या नहीं करे, लेकिन अगर वो कोई भी यूएन के चार्टर को फॉलो करता है, अल्टीमेटली पीस विल कम। तो दिस इज एनफ फॉर टुडे, थैंक्स।